First structured question is the diagram shows the structure if a metal. This is a structure of a metal. As we know, metal having a freely moving electrons in it. So you having these questions, according to the marks, you have to answer the question. Clear? Metals are malleable. As we know, metals are malleable. We can mold them according to our choice. So why they are malleable? Who is going to answer this? Why they are malleable? Abdul Rahman, Ibad, Zimal. Answer this. Zimal. Why metals are malleable? Metals are malleable because they don't hold the electrons, I guess, the metallic bonding tightly. That's why they're easily like replaced. Metals having a layers. Here you can see metals having a different layers and there are freely moving electrons. So these layers slide over each other. That's why they are malleable. Next is you have to answer this question like this, that they having a layers, these layers slide over each other because of the freely moving electron. Next is metals conduct. You have to answer in the given spaces. Okay, in exams, your exams are going to be held from school, so you have to answer your questions in the given spaces. टू द पॉइंट बात करनी है, एक्स्ट्रा कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है. आपसे जितनी बात पूछी गई है उतनी बात कीजिए. अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपने 2 पॉइंट्स बताने हैं अपना आंसर देते हुए. अगर 1 मार्क का क्वेश्चन है तो आप एक लाइन में भी बता देंगे तो वो आपको मार्क्स मिल जाएंगे. पर अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन है और आप जो है उसे जस्ट 1 लाइन में 1 पॉइंट में एक्सप्लेन कर देंगे तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है. जी ये बात. एक्सक्यूज मी मिस. जी बेटा. मिस आप मेटल्स एंड malleable वाला का दोबारा एक दफा आंसर बता देंगे. बेटा आप यहाँ देख रहे हैं मेटल्स की लेयर्स में स्पेसेस हैं because of freely moving electron or these layers slide over each other. That's why they are malleable. You can mold them easily. ठीक है. Next is metals conduct electricity. Why metals conduct electricity? Is question having a very easy answer. जी Abdul Rahman, answer this. Okay, Eman, you answer this. Abdul Rahman having a problem with the mic. Eman, you answer this question. Metals conduct electricity. मैम कैन आई. Eman, answer this. According to the structure, how you can say this? The metals conduct electricity. Eman, answer this question. मिस कैन आई. जी बात बताइए. मिस मैम cause they Miss? have freely moving electrons. जी एमन बताइए. because they have freely moving electrons. जी बिकॉज ऑफ द फ्रीली मूविंग इलेक्ट्रॉन. आपको एक लाइन में यही आंसर लिखना है. बिकॉज ऑफ द फ्रीली मूविंग इलेक्ट्रॉन्स और बिकॉज ऑफ द मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स. you can write because of the mobile electrons, because of the freely moving electrons, because electrons can move, that's why they conduct electricity. Ionic compounds
वाटर में जब सॉल्युबल होते हैं, जब सोल्यूशन फॉर्म में होते हैं, तो आयोनिक कंपाउंड्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, और मेटल्स बिकॉज ऑफ द फ्रीली मूविंग इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। कोवेलेंट कंपाउंड्स नहीं करते, क्योंकि ना उनके पास फ्रीली मूविंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और ना ही आयंस होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज sodium chloride NaCl and magnesium chloride MgCl2 both are ionic compound, as we know this. Describe the arrangement of the ions and the type of the attractive forces between the ions in solid magnesium chloride. आपने अरेंजमेंट बतानी है आयंस की मैग्नीशियम क्लोराइड में, तो मैग्नीशियम क्लोराइड में आयंस की क्या अरेंजमेंट है, और आपने अट्रैक्टिव फोर्स बतानी है जो सॉलिड सोडियम क्लोराइड के आयंस के बीच में है। तो पहले आपको ये बता दिए, एक अरेंजमेंट लिखा है और दूसरे में आपको हेडिंग दी हुई है टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। तो आपने इन्हीं हेडिंग्स के अकॉर्डिंग एक लाइन में आंसर लिखना है। ठीक है, और 2 मार्क्स का, यानी कि 1 मार्क्स आपके अरेंजमेंट को एक्सप्लेन करने के और 1 मार्क्स आपके टाइप ऑफ अट्रैक्टिव फोर्स को एक्सप्लेन करने के लिए। सो अरेंजमेंट क्या होती है? इट्स आयोनिक कंपाउंड, मैग्नीशियम क्लोराइड इज आयोनिक कंपाउंड। सो इसमें क्या होती है अरेंजमेंट? जी जिमल। जिमल आंसर दिस क्वेश्चन बेटा, विदाउट वेस्टिंग टाइम। आप लोगों से क्वेश्चन हो रहा है तो जल्दी जल्दी आंसर कीजिए। जी जिमल। Miss, they have a irregular lattice structure. Yes, because they having a regular lattice structure, they having a repeated pattern, they having a ordered structure. आप इसके लिए कुछ भी आंसर कर सकते हैं, स्पेसिफाइड नहीं होता कि स्पेसिफिक। आपका आंसर एक्सप्लेन होना चाहिए, बस आपने एक लाइन में लिखना है, लाइक देयर आयंस हैविंग अ regular structure, the ion having a lattice structure, the ion having a repeated pattern. आप इस तरह की बातें इसमें लिख सकते हैं। नेक्स्ट इज type of attractive force. G, Ayan, what type of attractive force is present in magnesium chloride's ion? This is ionic compound. तो ionic compound में कौन सी attractive forces होती हैं, मैंने आपको बताया था। जी, अगर आपने मेरी वीडियोस इन वेकेशंस में दोबारा देखी हो, सारे टॉपिक्स को दोबारा पढ़ा हो, तो आपको पता होगा कि कौन सी attractive force होती है। जी, आंसर दिस अयान। मैं किस में पूछ रही है अट्रैक्टिव फोर्स? बेटा हम कौन सा क्वेश्चन पढ़ रहे हैं? दिस वन ना, मैग्नीशियम क्लोराइड के बारे में बात कर रहे हैं ना। आपकी कंसंट्रेशन कहाँ है इसमें बताइए। मैग्नीशियम क्लोराइड में इट्स आयोनिक कंपाउंड, उन्होंने बता भी दिया, और आपको पता होना चाहिए कि आप आयोनिक कंपाउंड्स और कोवेलेंट कंपाउंड कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सारी वीडियोस दोबारा देखिए। जी बताइए, मैग्नीशियम क्लोराइड में कौन सी अट्रैक्टिव फोर्स है? आंसर दिस क्विकली अयान, इबाद, जिमल, और किसी को पता है इसका आंसर? अब्दुल रहमान। मिस डिस्पर्जन फोर्सेस। इसमें डिस्पर्जन फोर्सेस कहाँ से आ गई? मैम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज द आंसर। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आपने लिखना है, टाइप ऑफ फोर्सेस में लिखना है, दे हैविंग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस बिटवीन देयर आयंस। इतना सिंपल सा आपने आंसर लिखना है, या आप लिख दीजिए दे हैविंग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और दे पोजेस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और आयंस ऑफ सॉलिड मैग्नीशियम क्लोराइड हैविंग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। एक लाइन में आपका छोटा सा आपने आंसर लिखना है कि बताना है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। आपका सारा पेपर कॉन्सेप्चुअल होता है, बच्चों अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लीजिए। आप लोगों ने कोई थ्योरीज नहीं लिखनी जैसे मैट्रिक स्ट्रीम में लिखते हैं, आपने कॉन्सेप्ट बेस्ड आंसर्स एक लाइन में आंसर देना है, लेकिन परफेक्ट। आप दोबारा से सारी वीडियोस देखिए, दोबारा से चैप्टर्स बुक से रीडिंग कीजिए, उनकी इंटरनेट से रीड कीजिए, वरना आपके लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। नेक्स्ट इज explain why solid magnesium chloride doesn't conduct electricity but aqueous magnesium chloride conduct electricity. जी
एमन, इसका तो आप बच्चे आप आंसर बता सकते हैं। जी बताइए, अयान और एमन में से कौन बता रहा है? जी अयान, एमन, आंसर दिस क्वेश्चन। एमन तो नहीं है, जा चुकी है। अयान, आंसर दिस क्वेश्चन। मैग्नीशियम क्लोराइड कंडक्ट नहीं करता इलेक्ट्रिसिटी जब वो सॉलिड फॉर्म में होता है, लेकिन जब वो एक्वस होता है यानी कि सॉल्यूशन फॉर्म में आ जाता है तो वो कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी। क्यों? जिमल आप बताइए। अयान, आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा इन वेकेशंस में। जी जिमल, आंसर दिस। मिस मुझे इस वाले की नहीं, मुझे बेटा दिस अभी याद मैंने नहीं अभी है। बताया, अभी आपको बताया ऊपर कि आयंस जब फ्रीली मूविंग हो या इलेक्ट्रॉन्स हो तभी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। सॉलिड मैग्नीशियम क्लोराइड में आयंस तो फ्रीली मूविंग है ही नहीं। जब आयंस फ्रीली मूविंग ही नहीं है तो वो कंडक्ट कैसे करेंगे? यू हैव टू राइट हियर कि आयंस कैन नॉट मूव इन सॉलिड मैग्नीशियम क्लोराइड, but in aqueous magnesium chloride ions are freely moving, ions can move, that's why they conduct electricity। कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि सॉलिड मैग्नीशियम क्लोराइड में आयंस नहीं मूव कर रहे, वो एक दूसरे के साथ टाइटली पैक्ड है, वो फ्रीली मूव ही नहीं कर रहे। जब एक्वस हो जाता है तो आयंस फ्रीली मूविंग हो जाते हैं, वो कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। सिर्फ आपने 2 लाइंस में लिखना है कि इन अ सॉलिड मैग्नीशियम क्लोराइड आयंस कैन नॉट मूव, बट इन अ एक्वस मैग्नीशियम क्लोराइड्स आयंस कैन मूव, दैट्स व्हाई दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, दैट्स इट। एक्सक्यूज मी मिस। नेक्स्ट जी बेटा ये बात। मैम आप लेक्चर शेयर करेंगे ना रिकॉर्ड करके? बेटा अगर ये रिकॉर्डिंग हो गई तो जरूर कर दूंगी, बिकॉज अक्सर प्रॉब्लम आ जाता है जूम में, इसीलिए लाइव क्लास में आना बहुत जरूरी है, कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अ मैग्नीशियम आयन एंड अ क्लोराइड आयन। ये करने में किस किस को प्रॉब्लम आई है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैग्नीशियम आयन की और मैग्नीशियम उसकी क्लोराइड आयन की, किस किस से ये क्वेश्चन नहीं हुआ? नहीं जी नहीं हुआ। आपको मैग्नीशियम आयन Mg+2 होगा ना, Mg+2 इज मैग्नीशियम आयन, बिकॉज ये ग्रुप 2 का मेंबर है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम कैसे करते हैं बात शेल्स में? आपने वो KLM वाली जो हमने की थी क्लास में, याद है? हमने Yes, वो करनी थी KLMN। बस। तो आपने ये KLMN भी नहीं लिखना था, आपने डायरेक्ट लिख के बताना है कि 2 8 डायरेक्ट करना है। इसका एटॉमिक नंबर होता है मैग्नीशियम का 12। एग्जाम में आपको पीरियोडिक टेबल मिलेगा अगर आपको कोई भी एटॉमिक नंबर या एटॉमिक मास चेक करना है। 282, लेकिन +2 का मतलब है इट हैज डोनेटेड इट्स 2 इलेक्ट्रॉन्स, इसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर कर दिए हैं किसे? क्लोराइड आयन को। सो ये अब 2 नहीं लिखा जाएगा, तो यहां आपने लिखना था 2 8, दैट्स इट बस। और क्लोराइड आयन का मतलब है Cl-। मैग्नीशियम क्लोराइड में 2 क्लोराइड आयन होते हैं, मैग्नीशियम क्लोराइड में 2 होते हैं, और एक एक आयन कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो करता है? 2 8 और लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो जब एक क्लोराइड आयन 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो उसके लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। ये इसकी सिंपल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थी। मैग्नीशियम ने अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज किए हैं, क्लोराइड 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज किए हैं, और एक सिंगल क्लोराइड आयन ने 1 इलेक्ट्रॉन लिया है। अगर यहाँ 2 लिखा होता तो वो दोनों के लिए सेम कॉन्फ़िगरेशन हो जाती। सिर्फ इतना सा आंसर देना था इसका। Next is the table shows the melting point and relative electric conductance of 3 elements from period 3 of the periodic table। Period 3 के
पीरियड 3 के ग्रुप की बात नहीं हो रही है, पीरियड 3 की बात हो रही है। मैग्नीशियम, सिलिकॉन, सल्फर, इनके आपको जो है वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्टेंस और इसके मेल्टिंग पॉइंट्स दिए हुए हैं। मैग्नीशियम का मेल्टिंग पॉइंट, सिलिकॉन का और सल्फर का, और इनकी कंडक्टेंस बता दिए। मैग्नीशियम गुड कंडक्टर है, सिलिकॉन पुअर कंडक्टर है और सल्फर कंडक्ट ही नहीं करता। ठीक है, और इनके मेल्टिंग पॉइंट भी बता दिए। अब इस टेबल को माइंड में रखते हुए नीचे दिए गए क्वेश्चंस को आंसर करना है। सो सी 1 by 1. Use ideas of structure and bonding to explain the difference in the melting point of magnesium and sulfur. जी, स्ट्रक्चर को इनके माइंड में रखिए, इनकी बॉन्डिंग्स को माइंड में रखिए कि मैग्नीशियम में किस टाइप की बॉन्डिंग होती है और सल्फर में, और उनको माइंड में रखते हुए इनके मेल्टिंग पॉइंट्स का डिफरेंस बताइए कि इन दोनों में डिफरेंस क्यों है। मैग्नीशियम का मेल्टिंग पॉइंट है 649 और सल्फर का मैग्नीशियम पॉइंट है 113. सो व्हाई देयर इज सच डिफरेंस बिटवीन द मेल्टिंग पॉइंट्स ऑफ द मैग्नीशियम एंड द सल्फर? जी, कौन आंसर कर रहा है? जी, who is going to answer this? मैग्नीशियम का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा क्यों है और सल्फर का कम क्यों है? जिमल, अब्दुल रहमान, बोलिए बेटा, आप लोगों को इसका आंसर क्यों नहीं आता? मैग्नीशियम में किस टाइप की बॉन्डिंग होती है? मैग्नीशियम में किस टाइप की बॉन्डिंग होती है? मैग्नीशियम इज अ मेटल, मेटल हैविंग अ मेटालिक बॉन्डिंग। मेटल है, मैग्नीशियम एक मेटल है और मेटल में मेटालिक बॉन्डिंग होगी। तो मेटालिक बॉन्डिंग अगर है मेटल में, मैग्नीशियम इज अ मेटल और उस मेटल में सिर्फ मैग्नीशियम की बात हो रही है, इसके साथ और कुछ नहीं लिखा, तो अगर अकेला मैग्नीशियम है तो उसमें मेटालिक बॉन्डिंग है। तो बिकॉज ऑफ दैट मेटालिक बॉन्डिंग, मैग्नीशियम हैविंग हाई मेल्टिंग पॉइंट। और सल्फर में कौन सी बॉन्डिंग है? सल्फर हैविंग विच बॉन्डिंग? सल्फर के मॉलिक्यूल्स के बीच में कोवैलेंट बॉन्डिंग होती है बिकॉज इट इज नॉन मेटल। सल्फर एक नॉन मेटल है तो उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में, सिर्फ अब्दुल रहमान आंसर कर रहे हैं और वो मुझे मैसेज कर रहे हैं, उसके अलावा कोई भी बोल नहीं रहा, किसी को भी इसका आंसर नहीं पता। सल्फर में कोवैलेंट बॉन्डिंग है, दैट्स व्हाई सल्फर का मेल्टिंग पॉइंट कम है और मैग्नीशियम का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है, बिकॉज मैग्नीशियम हैविंग अ स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग। मैग्नीशियम के पॉजिटिव आयंस और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है, एक जाइंट स्ट्रक्चर है, दैट्स व्हाई नीड मोर एनर्जी टू ब्रेक। मैग्नीशियम को बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए, बहुत ज्यादा हीट चाहिए ब्रेक करने के लिए, उसके मॉलिक्यूल्स को, उसके एटम्स को सेपरेट करने के लिए। सल्फर क्योंकि कोवैलेंट कंपाउंड है, उसके एटम्स के बीच में ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग नहीं है, तो आप उसे इजीली ब्रेक कर सकते हैं, उसके लिए आपको कम एनर्जी चाहिए। सिंपल, आपने ये आंसर लिखना है यहाँ पर, दैट मैग्नीशियम हैविंग अ स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बिटवीन पॉजिटिव आयंस एंड द फ्रीली मूविंग इलेक्ट्रॉन्स, इट हैविंग अ जाइंट स्ट्रक्चर, और सल्फर इज अ सिंपल मॉलिक्यूल, वीक फोर्सेस बिटवीन सल्फर मॉलिक्यूल्स। इतना सा आंसर लिखना है जो कि आपका 2 मार्क्स का है। आपका पेपर completely concept based है, you have to clear your concept and write your answer just in a 2 to 3 words, 3 sentences. Clear? आपने पूरी पेजेस की कहानियां नहीं लिखनी, concept based 2 lines में अपना आंसर लिखना है। Next is the difference in the electrical conductivity of magnesium and sulfur. Magnesium is a good conductor, sulfur doesn't conduct electricity. ऐसा क्यों है जी? जिमल, इबाद, Because magnesium is a metal and sulfur is not. बेटा ये तो आंसर नहीं होगा ना कि मैग्नीशियम मेटल है तो वो कंडक्ट कर रहा है। नो, यू हैव टू प्रॉपर्ली आंसर दिस क्वेश्चन कि मैग्नीशियम हैविंग अ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, मेटालिक बॉन्डिंग और मैग्नीशियम में मैग्नीशियम हैविंग फ्री इलेक्ट्रॉन। आप इस तरह नहीं लिख सकते, मैं आपको 0 नंबर दूंगी अगर आप ये लिखेंगे कि मैग्नीशियम मेटल है इसलिए। नो, मैग्नीशियम हैविंग अ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, दैट्स व्हाई इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। सल्फर do not having a ions, do not having a freely moving electrons, that's why it do not conduct electricity, that's why it doesn't conduct electricity.
बात समझ आ रही है? आपका सारा का सारा पेपर कॉन्सेप्ट बेस है, मैं ये बार बार कह रही हूँ। कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लीजिए, जो लेक्चर की वीडियोस हैं उन्हें सुने, जो भी मैंने लेक्चर्स दिए उन्हें लिखें। अब आपने दोबारा सारे लेक्चर्स की वीडियोस देखनी है और उन्हें लिखना है और प्रैक्टिस करना है। अब तक आपके साथ जितनी भी असाइनमेंट शेयर हुई हैं, जितने भी मैंने लेक्चर्स दिए हैं, आपके बुक में जो टॉपिक्स हैं ये सेम, उन सबको रीड कीजिए और बार बार प्रैक्टिस कीजिए। और बुक आपकी इनफ नहीं है, आपको कॉन्सेप्ट बेस एक्स्ट्रा बुक्स भी पढ़नी चाहिए। अब आप स्कूल आएंगे एग्जाम्स के लिए, तो जो आपको फ्री टाइम मिले उसमें लाइब्रेरी से आप कोई बुक लें और उसे रीड करें, वरना आपके लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ओके, नेक्स्ट इज सिलिकॉन हैज अ स्ट्रक्चर सिमिलर टू डायमंड। अब बीच में हमारे पास एक जो एलिमेंट दिया है दैट इज सिलिकॉन। सिलिकॉन का मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है और ये कंडक्टर पुअर है। ओके, so question is, silicon has a structure similar to diamond। सिलिकॉन का स्ट्रक्चर डायमंड के जैसा होता है, ठीक है। एक्सप्लेन व्हाई सिलिकॉन हैज अ हाई मेल्टिंग पॉइंट। एक्सप्लेन कीजिए सिलिकॉन का मेल्टिंग पॉइंट हाई क्यों होता है। जी, कौन बता रहा है? आप देख रहे हैं मेल्टिंग पॉइंट सिलिकॉन का मैग्नीशियम से भी ज्यादा है, सल्फर से भी ज्यादा है, दोनों से ज्यादा है। और आपको बता भी दिया गया है कि सिलिकॉन का स्ट्रक्चर डायमंड के जैसा होता है। तो आपने अब ये बताना है कि इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा क्यों है। माइंड में ये रखना है कि सिलिकॉन का स्ट्रक्चर डायमंड के जैसा है, और अब इस क्वेश्चन को आंसर कीजिए कि इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा क्यों है। मिस जी बेटे। मिस क्योंकि उसकी एनर्जी इससे ज्यादा होती है। नो, एनर्जी की बात इस तरह नहीं कर सकते आपके उससे ज्यादा होती है। व्हाट डज इट मीन कि एनर्जी उससे ज्यादा होती है? जी जी जिमल। क्योंकि उसका कोवलेंट बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है। नो, हमने इसको कंपेयर करना है मैग्नीशियम के मेल्टिंग पॉइंट से और सल्फर के मेल्टिंग पॉइंट से कि इन दोनों से ज्यादा क्यों है, क्योंकि टेबल तो हमें वही दिया गया है। सिलिकॉन का स्ट्रक्चर डायमंड के जैसा है, और आप ये नीचे डायग्राम में देख रहे हैं डायमंड का स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल होता है, एक कार्बन एटम 3 कार्बन एटम्स के साथ अटैच होता है। इसी तरह सिलिकॉन में भी 4 बॉन्डिंग्स होती हैं, और इसी तरह वो 4 बॉन्डिंग्स अगेन 4 बॉन्डिंग्स करती हैं। जब 4 बॉन्डिंग बार बार होती है, रिपीटेड पैटर्न है, मैनी कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं, बहुत ज्यादा कोवेलेंट, यहाँ गिन सकते हैं कितने सारे कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं, ये भी कम है, और 4 एटम्स अटैच होते रहते हैं, तो ये बहुत जाइंट स्ट्रक्चर होता है। तो आपने लिखना है इट हैविंग अ जाइंट स्ट्रक्चर, मैनी कोवेलेंट बॉन्ड्स, दैट्स व्हाई नीड high temperature, need a lot of energy to break the bonds. That's why silicon having a high melting point. किसमें बहुत सारे कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग जाइंट स्ट्रक्चर है, इसलिए इसे ज्यादा एनर्जी चाहिए। इसका आंसर आपने इस तरह देना है। नेक्स्ट इज द स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड एंड सिलिकॉन डाइऑक्साइड। आपको दिखा दिया गया है कि ये डायमंड का स्ट्रक्चर है और सिलिकॉन डाइऑक्साइड का। सिलिकॉन डाइऑक्साइड में एक सिलिकॉन का एटम 4 ऑक्सीजन के एटम्स के साथ अटैच है। ये जो छोटे एटम्स हैं ये ऑक्सीजन के हैं, और ये जो मेन एटम शो हो रहा है ये सिलिकॉन का है। ये मीटिंग 9 मिनट्स के बाद एंड होने वाली है, सो डू इट क्विकली। इन स्ट्रक्चर्स को माइंड में रखते हुए एक्सप्लेन करना है। डिस्क्राइब वन सिमिलैरिटी एंड डिसिमिलैरिटी इन द स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड एंड सिलिकॉन। डायमंड और सिलिकॉन में एक सिमिलैरिटी बतानी है और एक डिसिमिलैरिटी आपने बतानी है, कि डायमंड और इसके स्ट्रक्चर में एक सिमिलैरिटी और एक डिसिमिलैरिटी। जी, सिमिलैरिटीज तो बहुत सारी हो सकती हैं, दोनों का टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, ऐसा ही है, दोनों में टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, 4 एटम्स के साथ अटैच हैं, अराउंड देयर आर 4 एटम्स, ऐसा ही है। बोथ जो है वो मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं। मैक्रोमोलिक्यूल्स कहते हैं बड़े मॉलिक्यूल्स को, तो आप ये भी लिख सकते हैं कि बोथ आर मैक्रोमोलिक्यूल्स, बोथ हैविंग अ टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, ईच हैज 1 एटम सराउंडेड बाय 4 अदर एटम्स। तो आप इस तरह ये इनका एक सिमिलैरिटी इस तरह लिख सकते हैं, ठीक है। और एक आपने लिखनी है डिसिमिलैरिटी, तो आप एक डिसिमिलैरिटी क्या लिख सकते हैं इसमें,
आप एक डिसिमिलैरिटी इसमें लिख सकते हैं कि डायमंड में सारे के सारे कार्बन एटम्स हैं और सिलिकॉन डाइऑक्साइड में सिलिकॉन और ऑक्सीजन एटम्स हैं। क्लियर? तो ये आप उसकी डिसिमिलैरिटी लिख सकते हैं। उसके बाद है एक्सप्लेन व्हाई सिलिकॉन डाइऑक्साइड हैज अ हाई मेल्टिंग पॉइंट। सिलिकॉन डाइऑक्साइड का मेल्टिंग पॉइंट डायमंड से हाई क्यों होता है? जी अभी अभी ऊपर बताया गया है आपको कि जाइंट स्ट्रक्चर है, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है, बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए उसे ब्रेक करने के लिए, वही आपने आंसर यहाँ अटेम्प्ट करना है। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन व्हाई डायमंड डजंट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। जी डायमंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट क्यों नहीं कर सकता? जल्दी। Because उसके पास freely moving electrons नहीं यस होते। सिंपल, आपने यही सेम कॉन्सेप्ट यूज करना है। नो फ्रीली मूविंग इलेक्ट्रॉन्स, नो आयंस टू कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी। ठीक हो गया। ये आपके स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन है। आज भी मैंने आपके साथ कुछ एमसीक्यूज और कुछ स्ट्रक्चर क्वेश्चन शेयर किए हैं। आज आपने वो अटेम्प्ट करना है। ये भी कंप्लीट कीजिए अपनी असाइनमेंट और मुझे व्हाट्सएप कीजिए। अब मैंने आज को तो आपके आंसर्स भी शेयर कर लिए हैं, तो अब इन आंसर्स को प्रॉपरली आपने लिखना है और मुझे शेयर कीजिए। आज की असाइनमेंट भी, ये कल वाली असाइनमेंट भी सॉल्व करके, और जो आज मैंने आपके साथ स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन और कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन शेयर किए हैं वो भी। अच्छा ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जल्दी से देख लेते हैं बिकॉज ये मीटिंग एंड होने वाली है, तो जितने हो सकते हैं हम देख लेते हैं। A researcher noticed that atom of an elements are releasing energy. जी कौन से एटम्स रिलीज करते हैं एनर्जी? रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स मैम दैट कैनेडा जी बेटा। मैम आई थिंक सो द एटम्स that are radioactive. यस बेटा रेडियो एक्टिव एटम्स ऑफ एलिमेंट्स एक्स एंड वाई हैव द इलेक्ट्रॉन। एक दो एटम्स हैं एक्स और वाई, उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इसकी 2 5 है और इसकी 2 8 और 5 है रिस्पेक्टिवली। विच डिडक्शन अबाउट दीज एलिमेंट्स कैन बी मेड फ्रॉम दिस इंफॉर्मेशन। इस इंफॉर्मेशन से आप क्या आइडिया लगा सकते हैं? Canada. जी बेटा। See, the elements are in the same group of the periodic यस table. एक्सीलेंट बात। जब सेम आपके ग्रुप में होते हैं तो उनके आउटर मोस्ट शेल में सेम इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 5 5 लिखा हुआ है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में सेम शेल है, तो इसका मतलब है सेम ग्रुप से इनका कंसर्न है। गुड एक्सीलेंट। थर्ड वन इज फॉलोइंग डाटा में रेफर टू द एटम और टू द आयन ऑफ द सेम एलिमेंट। जी ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता दी है 288, उसका न्यूक्लियॉन नंबर यानी कि एटॉमिक मास बता दिया 40, और एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक मास है 40 और उसका जो एटॉमिक नंबर है वो है 20। ठीक है, और उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 288 यानी कि आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स है। जी कौन सा एलिमेंट है इनमें से? ये एटॉमिक मास और ये एटॉमिक नंबर किस एलिमेंट का होता है? 20 एटॉमिक नंबर और 40 एटॉमिक मास किस एलिमेंट का है? क्विकली आंसर दिस। Yes, कैल्शियम। I think so. Argon. No, calcium. Calcium having a atomic number 20 and atomic mass 40. याद रखना है ये। ऑर्गन का एटॉमिक नंबर 20 नहीं होता, ऑर्गन का एटॉमिक नंबर 18 होता है। ऑर्गन हैविंग एटॉमिक नंबर 18, एटॉमिक मास 40। एटॉमिक मास तो दोनों का सेम है लेकिन इसका एटॉमिक नंबर, बेटा ये आपको पीरियोडिक टेबल दिया जाएगा, फॉरन ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए पीरियोडिक टेबल की तरफ जाएं कि एटॉमिक नंबर किसका 20 है किसका 40 एटॉमिक मास है। जी नेक्स्ट इज विच स्टेटमेंट अबाउट ग्रेफाइट इज नॉट करेक्ट। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ग्रेफाइट के लिए करेक्ट नहीं है? जी It's a carbon compound. यस ग्रेफाइट इट इज अ कार्बन कंपाउंड, ये स्टेटमेंट जो है इज नॉट करेक्ट। ओके, इट बर्न्स टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, इट इज अ जायंट मॉलिक्यूलर सब्सटेंस, इट यूज एज अ लुब्रिकेंट, ये सारी बातें ठीक है, ये एक कार्बन कंपाउंड नहीं है। क्लियर? नेक्स्ट, an atom of an element has 8 electrons only, an atom of an element जिसके पास सिर्फ 8 electrons हैं। which statement about this element is correct? इस एलिमेंट के बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? जी एक एलिमेंट है जिसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? जी Yes, मुझे बी लग रही है. जल्दी बताइए, It has a बहुत full इजी outer है। shell. It has a full outer shell of electrons. बेटा एक एलिमेंट है जिसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है, मतलब पहले शेल में 2 हो गए और दूसरे में 6.
जी बताइए जल्दी। दूसरे में 6 हैं तो उसे कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए? दूसरे में 6 हैं तो कितने चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। 2 इलेक्ट्रॉन लेकर हो जाएगा 2 नेगेटिव, ऐसा ही है। तो पहली स्टेटमेंट करेक्ट है, राइट? फॉर्म्स एन आयन विद 2 नेगेटिव चार्जेस। सिंपल। सो कॉन्सेप्ट्स बेटा फॉरेन स्ट्रक्चर बनाया करें, रफ वर्क में फॉरेन कॉन्सेप्ट समझा करें। रफली जबानी सोचने बैठेंगे कुछ नहीं होगा। फॉरेन स्ट्रक्चर बनाया, फॉरेन सोचा कि क्या हो सकता है पॉसिबल। ओके नेक्स्ट इज ये मीटिंग 3 मिनट्स बाद खुद ही एंड हो जाएगी, तो जितना हो सकता है मैं बता रही हूँ, बाकी फिर आप लोग देख लीजिएगा। ओके द डायग्राम शो द स्ट्रक्चर ऑफ 2 फॉर्म्स ऑफ कार्बन। ये दोनों कार्बन की फॉर्म्स हैं, ये तो आपको पता है डायमंड और ये आपको पता है ग्रेफाइट है। रेस और टी इसको लिख दिया गया। अच्छा जी आपने बताना है इन सब में कौन सा डेटा जो है वो 2 स्ट्रक्चर्स के लिए करेक्ट है। अच्छा जी कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, वेरी हार्ड मटेरियल, कैन बी यूज एज अ लुब्रिकेंट। तो आप देखते रहे कि एस और टी कौन कौन सी बातें किसके लिए सही हैं जी। कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, एस जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है, इट्स ट्रू, क्योंकि ग्रेफाइट में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो कंडक्ट कर सकता है जी। टी इज वेरी हार्ड मटेरियल, यस डायमंड बहुत हार्ड होता है जी। एस कैन बी यूज एज अ लुब्रिकेंट, मैंने आपको बताया था ग्रेफाइट यूज होता है एज अ लुब्रिकेंट, तो इसका आंसर बी ठीक था। नेक्स्ट आइए, आपने बेटा ये पूरा टेबल देखना है और इतना टाइम नहीं होगा, अपनी प्रैक्टिस रखें इस तरह की चीजों की जी। द डायग्राम शो द अरेंजमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द आउटरमोस्ट शेल ऑफ एन एटम इन द कंपाउंड। ये एक्स वाई Z2 का कंपाउंड है, ठीक है। YZ2 यानी कि जो मेटल है, ये मेटल है, इस मेटल के ऊपर डेफिनेटली +2 चार्ज होगा और ये वाला जो एलिमेंट है इसके ऊपर डेफिनेटली -1 चार्ज होगा। जो ये -1 इधर जाएगा, तभी मैंने कुछ नहीं लिखा हुआ और यहाँ पर ये 2 आ गया, ठीक है। तो कोई ऐसा है जिसके Y पर +2 चार्ज है और इस पर -1 जी। आपको कौन सा लगता है इन चारों में से कि ये कौन कौन से एलिमेंट हो सकते हैं? मिस बी लग रहा है। Y क्या हो सकता है और Z क्या हो सकता है, आपको क्या लग रहा है जी? इट्स जल्दी बताइए। सी। सी तो मैंने वो गलत लगाया हुआ, वो मार्क थोड़ी आपने वही सोच लिया। नहीं, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन नो के नो बीच नो मिस में कैसे कैसे लग बॉन्ड रहा हो है कि सकता है जी? बी। जी आप लोग और सोचें और क्या हो सकता है, जल्दी बताइए। कौन सी बॉन्डिंग है यहाँ पर? ये कौन सी बॉन्डिंग है? यहाँ शेयरिंग हो रही है। शेयरिंग का मतलब है कौन सा बॉन्ड है? कोवेलेंट। अगर यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होता, फॉर एग्जांपल यहाँ पर ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिखाते तो आयंस दिखाते Y+Z-, इस तरह कुछ होता। ऐसा नहीं है, ये एटम्स में शेयरिंग दिखाई हुई है, ना ही आपको ऐसा कोई स्ट्रक्चर बताया है कि यहाँ प्लस साइन आ गया और इस पर माइनस। नो, ये होता तो आयनिक। ये कोवेलेंट कंपाउंड है। कोवेलेंट कंपाउंड नॉन मेटल्स के बीच में होता है। तो अब आप यहाँ देखें कौन कौन से नॉन मेटल है। डी नॉन मेटल है, सी नॉन मेटल है और बी नॉन मेटल है। कार्बन हो नहीं सकता मिस क्योंकि लेस देन अ मिनट। कार्बन हो नहीं सकता क्योंकि इसके ऊपर प्लस चार्ज नहीं, इसके ऊपर +2 चार्ज नहीं आ सकता, ठीक है, या -2 चार्ज नहीं आ सकता, ये नहीं हो सकता। ऑक्सीजन हो सकता है या सल्फर हो सकता है, लेकिन अगर ऑक्सीजन है तो ये आपका हाइड्रोजन ऐसे नहीं हो सकता, आप इस तरह नहीं लिख सकते। तो कौन सा बेस्ट ऑप्शन है? डी इज द बेस्ट ऑप्शन, एस, सल्फर